Hello students, myself Rakesh Misra. Now we are going to talk about restriction endonuclease enzyme. This is a matter of class 12, chapter 11, principle of biotechnology. The second portion of this chapter is processes of biotechnology, but here we are going to discuss about the principle of biotechnology. Since long time you have seen the different principle of biotechnology. This is the key tools and terminology part 1. In key tools and terminology part 1 you have studied the restriction enzyme. In previous video lecture you have seen the different types of different criteria that we decide why the restriction enzyme so called and how did the restriction enzyme discovered. In this video lecture we are going to discuss only about the restriction endonuclease enzyme. Why it is endonuclease? Because this cuts the specific DNA portion through the internal parts and creates the sticky end. In previous video you have learned the DNA by the application of restriction enzyme either cut through the outside that creates the blunt edge, or the DNA by the application of restriction enzyme cuts itself with the help of the sticky end. This is the sticky end and this is so useful. In this video lecture we will discuss about the more detail about the restriction endonuclease. This class of enzyme is restriction endonuclease, while this class of enzyme is restriction exonuclease. Listen, the first restriction endonuclease was discovered by H.O. Smith, T.J. Kelly and K.W. Wilcox. In 1968, the first restriction endonuclease was discovered by H.O. Smith, T.J. Kelly and K.W. Wilcox. That was actually Hind second. The enzyme was Hind second. The enzyme was discovered from the strain of Haemophilus influenzae bacteria. From Haemophilus influenzae bacteria. From Haemophilus influenzae bacteria. Listen, that was the enzyme, that was the source, and this is the year, and these were the discoverer. So these three group of scientists discovered the first restrictor endonuclease enzyme as Hind. Third, from the Haemophilus influenzae bacteria that cause influenza in the different kinds of animals. So these are the discovery. So what we learn from these shots, the first enzyme was Hind second, and that was discovered by H.O. Smith, T.J. Kelly and K.W. Wilcox, and it was from the Haemophilus influenzae bacteria. ये एग्जामिनेशन में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तक में पूछा जाता है कि पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कौन सा था, तो यहाँ पे क्लियर हो गया, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था हाइंड सेकेंड। इसके सोर्स ऑर्गेनिज्म क्या थे? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, और इसको किसने डिस्कवर किया था? H.O. स्मिथ, T.J. केली एंड K.W. विल्कॉक्स, ये तीनों ने इसकी डिस्कवरी की थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि 1968 में डिस्कवर किया गया था। ठीक है, ये फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था। अब आते हैं नेक्स्ट की मैं बात कर दूं, नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। Nomenclature of restriction endonuclease enzyme. Nomenclature of restriction endonuclease enzyme.
nomenclature of restriction endonuclease enzyme. This must be learned by you because this is very important topic for class 12 students. This is very important, nomenclature. Let me introduce you the first letter. First letter of restriction endonuclease enzyme represent the genus of source organisms. First letter represent the genus of source organisms. Source organism. Listen. For example, suppose that restriction endonuclease enzyme ECO are first. Listen. So what does the meaning of E? The Escherichia. Escherichia. That was the source organisms. Source organism. And that was the genus. Genus of source organisms. The second letter represent the species of source organisms. For example, these two letters referred for coli, and that is the species of source organisms. Let us introduce you the second types of restriction endonuclease enzyme, the hind second. There is no need of hyphen. Hind second. So what does the meaning of hind for H? The hemophilus. And what does the hemophilus represent? This is the genus of source. Genus of source organisms. Genus of source organism. Listen. And I and D, this represent the influenzae. This represent the influenzae. And what does the influenzae means? This is the genus, that is the species of the hemophilus. Species of hemophilus. Listen. That is the hemophilus. The species of hemophilus. So this cause hemophilia, that is the influenza. This cause the influenza of the different living being. That's why the organism so called hemophilus influenzae. So I hope from the first letter and from the second letter your concept for the hemophilus for the hind second and from the ECO are first is clear. That is the first letter and second letter of ECO are first, that is the first letter, and second two letter. The second two letter is represent the species of source organisms. Example, the CO in ECO are first and IN from influenzae, that is the hind second. ठीक है? So first letter क्या represent कर रहा है? First letter represent कर रहा है genus of source organisms. The first letter represent the first letter of genus of source organisms, and second letter represent the second two letters represent the second that is the two letters of species. That will be the always small letter. As you all know, the name of species begin always from small letter. ठीक है? अब आते हैं थर्ड में, the second last letter, that is the R in ECO are first and D in hemophilus, that is in hind second. The second last letter represent the strain of source organisms, that is mostly prokaryotic cell or bacteria. Listen, second last letter represent the strain of source organisms, that is prokaryotic cell or bacteria. Strain क्या होता है भाई? सेकेंड लास्ट लेटर, यही सेकेंड लास्ट लेटर है इसका। ECO R फर्स्ट में
जो आर है, अब इसको मैं अच्छे से समझा दे रहा हूँ, उसको आप स्नैपशॉट ले लीजिए, पॉइंट थर्ड को मैं अच्छे से समझा दे रहा हूँ, क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे द सेकेंड लास्ट लेटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द सेकेंड लास्ट लेटर रिप्रेजेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकेंड शॉर्ट लेटर जो है, सेकेंड लास्ट लेटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। अभी स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया की बात मैं डिस्कस करते रहा हूँ, स्ट्रेन क्या होता है फिलहाल इसको मैं अरेंज कर दे रहा हूँ और इन पॉइंट में क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। Listen. Second last letter represent the strain of bacteria or strain of source organisms. For example, अब इको और फर्स्ट की मैं बात कर दूं, इको और फर्स्ट में ये जो आर है, आर इसका पूरा नाम है RY13 और ये क्या है, स्ट्रेन ऑफ इको आर फर्स्ट, दैट इज एसेंशिया कोली बैक्टीरिया, एसेंशिया कोली बैक्टीरिया, ठीक है। ये RY13 क्या है, स्ट्रेन ऑफ एसेंशिया कोली बैक्टीरिया। अभी स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहे हैं। हाइंड सेकेंड में ये जो डी है, डी का मतलब होता है DSM 111121 और ये क्या है, स्ट्रेन ऑफ हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, स्ट्रेन ऑफ हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ये ध्यान देना है, स्ट्रेन ऑफ हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी दैट इज द DSM 111121। अब ये स्ट्रेन क्या होता है, ये सबसे बिगर क्वेश्चन है, ये आपको जानना है और ये समझना है स्ट्रेन क्या होता है, ठीक है। लिसन, सपोज दैट ये कोई बैक्टीरिया है, नोट कर लीजिए, सपोज दैट ये कोई ई कोली बैक्टीरिया है, ठीक है, ई कोली बैक्टीरिया, इसकी ढेर सारे प्रोजेनी, सपोज द सेल डिवीजन के बाद इसके ढेर सारे प्रोजेनी बन गए, तो ये भी इक्वली होगा, ये भी इक्वली होगा, ये भी इक्वली होगा, ध्यान देना है, और ये भी इक्वली होगा, सब इसिया कोली ही होगी। जरूरी नहीं है कि 1 2 3 4 यानी प्रोजेनी नंबर 1 2 3 4 यानी जरूरी नहीं कि सब के सब जो है इको आर फर्स्ट एंजाइम प्रोड्यूस करें, ठीक है। ये इको आर फर्स्ट, इसमें से जो एंजाइम प्रोड्यूस करता है उसी का ये स्ट्रेन, मतलब सबका अलग अलग नाम हो जाता है। ई कोली बैक्टीरिया के इतने बच्चे होते हैं, जैसे मान लो कि इंसान का कोई 4 लड़का, उस चारों इंसान है, लेकिन किसी का नाम राधे है, किसी का नाम इब्राहिम है, किसी का नाम अल्बर्ट है, तो ऐसे ही ई कोली बैक्टीरिया का जो जितने भी प्रोजेनी होते हैं उनके साइंटिस्ट लोग मिलकर उनका कोई ना कोई नाम रख देते हैं, तो ये बोला जाता है कि स्ट्रेन टाइप 1, स्ट्रेन ई कोली स्ट्रेन 2, ई कोली स्ट्रेन 3, ई कोली स्ट्रेन 4, या फिर आप अपने हिसाब से नाम रख दे सकते हैं। जैसे मैंने बोला है कि RY13 ये है तो ई कोली बैक्टीरिया, लेकिन हो सकता है कि RY12 भी हो, RY11 भी हो, RY10 भी हो, लेकिन वो सब जो है इको आर फर्स्ट एंजाइम नहीं बना रहे हैं, यानी कि चारों एंजाइम नहीं बनाएंगे, चारों का फंक्शन एक जैसा नहीं होगा, इसमें से कोई एक जो है क्या बनाएगा, इको आर फर्स्ट एंजाइम बनाएगा, और वही इको आर फर्स्ट एंजाइम उस सोर्स के नाम पे ये वाला लेटर बताएगा कि हम उस सोर्स से बने हैं। जैसे मान लो कि इसका नाम है RY11, RY12, RY13, RY14, ठीक है, ध्यान देना है। तो ये इको आर फर्स्ट नहीं बनाया, ये भी नहीं बनाया, ये भी नहीं बनाया, लेकिन RY13 ये एंजाइम बनाया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, तो बोलेंगे कि ये RY13 एक स्ट्रेन है जिसने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को बनाया, ठीक है। RY13 ई कोली का एक स्ट्रेन है जिसने क्या बनाया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो जब हम इको आर फर्स्ट लिखेंगे उसमें आर को नहीं बोलेंगे, आर को उसमें प्लेस कर देंगे, तो यही ये बता रहा है कि ये आर जो है ये नाम है उस बैक्टीरिया का जिससे इको आर फर्स्ट पहले बनाया गया था, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड में, जैसे आपको हाइंड सेकेंड ये पहला डिस्कवर्ड बैक्टीरिया था, ठीक है। तो इसमें जो डी वर्ड है, ये डी वर्ड बता रहा है DSM 111121, ये स्ट्रेन है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी का जिससे हाइंड सेकेंड एंजाइम रिकवर्ड किया गया था। आई होप आपका स्ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब आते हैं लास्ट जो रोमन डिजिट्स है, कैपिटल आई एंड कैपिटल डबल आई, ठीक है, उसका क्या मतलब हुआ उसको मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूं। Listen, last letter, last Roman letter represent the order of isolation. Order of isolation. लास्ट जो रोमन डिजिट्स है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये इको आर फर्स्ट है और ये हाइंड सेकेंड, ठीक है। तो सबको पता है कि ये इसकी डिस्कवरी पहले हुई थी, डिस्कवर्ड फर्स्ट, और ये डिस्कवर्ड लेटर, ध्यान देना है, डिस्कवर्ड लेटर, ये बाद में डिस्कवर किया गया था। बट हुआ क्या कि जहां से जो चीजें डिस्कवर की जाती है वहां से उसको निकाला कब गया था, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये रोमन डिजिट्स। यानी कि ये पहले डिस्कवर कर लिया गया था लेकिन उसको वहां से आइसोलेट करने में 5 साल लग गए, ठीक है। तो बोलेंगे डिस्कवर्ड फर्स्ट बट आइसोलेटेड 5 ईयर लेटर, 5 ईयर लेटर, यानी कि 5 साल बाद जो है डिस्कवर करने के 5 साल बाद जो है इसको आइसोलेट किया गया। इसलिए ये क्या बता रहा है, ये हाइंड सेकेंड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइंड सेकेंड रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। इट मींस आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एंजाइम द दिस रिप्रेजेंट द सेकेंड ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन एंड द फर्स्ट रिप्रेजेंट द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। यानी कि इसको खोजा पहले गया था और इसको हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से बाद में निकाला गया, इसको खोजा बाद में गया था और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से पहले निकाला गया था। तो बोल सकते हैं क्या, आइसोलेटेड फर्स्ट बिफोर हाइंड सेकेंड, ठीक है। ये एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकेंड लेटर ये डिस्कवरी का ऑर्डर नहीं है, ये ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन है कि कब एंजाइम डिस्कवर्ड, कब एंजाइम को सोर्स ऑर्गेनिज्म से निकाला गया था, ठीक है। आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में इसको कर सकते हैं। थैंक यू।